Okay, so hello students, it's me Kumar Saurav. I'm your biology faculty. So today we'll start with the topic genetics. So let's begin. See, so it's for ICSE 10th, and the topic which I'm going to discuss you right now is the genetics, and it is for the alpha series in which we're gonna discuss the physics, chemistry, and biology, and I will take the biology part. Okay, it's about myself. It's me. And this is all about the alpha series where, complete course for the ICSE, will be discussed in depth explanations, question bank test series, and, weekly live dot sessions will be conducted. And for the timing, you will get notified. And these all things. And if you want to get enrolled, you can use the code SOROV to get an additional discount. Okay. So let's begin our topic, that is genetics. See, genetics is a broad, topic, but here we'll study about the classical genetics, right? Or you can say Mendelian genetics we'll deal with. Okay. So before starting the genetics, we should some introduction part that genetics term was given by who is the father of genetics, who is the father of modern genetics, and all these things. What do you understand by the genetics and all these things? So see, genetics term was given by WH, that is the William Bateson, right? And the father of the genetics is J. J. I mean George John Mantel, and the father of modern genetics, that is also William Bateson, that is W. Okay. Now let's understand what is the meaning of genetics. Genetics से आप क्या समझते हैं? So genetics मतलब it's a collective study of heredity and variation. What's the meaning of genetics? It's a collective study of heredity and variation. It means genetics में हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड जब दोनों चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज जेनेटिक्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, राइट? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट. Now heredity means it's a study of transmission of genetic characters from parents to offspring. Parents से offspring में, right? So let me just write it down. Study of transmission of genetic character
study of transmission of genetic characters from parents to offspring, or you can say from one generation to the next generation. Okay, so it's a study of transmission of genetic characters from parents to offspring. Also, you can use the word progeny. Okay, so हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? स्टडी किसका? ट्रांसमिशन किसका? जेनेटिक कैरेक्टर का, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी. अब यहाँ पे ये वर्ड जो है जेनेटिक कैरेक्टर, ये इट्स अ ह्यूज डिस्कशन कि जेनेटिक कैरेक्टर आखिर होते क्या है, क्योंकि हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर टर्म कई बार यूज करेंगे, है ना, जेनेटिक्स में जेनेटिक कैरेक्टर, बट उसका मतलब क्या होता है विल अंडरस्टैंड इन द कमिंग सेशंस. ओके, और हायर क्लासेस में इसको मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर जेनेटिक कैरेक्टर होता क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत होती है, राइट. ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कंसेप्चुअली इन हायर क्लासेस. बट फॉर द टाइम बीइंग विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर जो जीन की वजह से है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ जेनेटिक कैरेक्टर. ओके, we'll understand with the help of examples as well in coming session. Don't worry. So abhi for the time being understand heredity. So it's a study of transmission of genetic character from parent to the offspring. Okay, now heredity is associated with the production of similar kind of progeny or similar kind of offspring. उसको अगर एक short forms में बोलेंगे तो we call it as like begets like, right. Human produce कर रहा है human, goat produce कर रहा है goat, elephant produce कर रहा है elephant. And in human beings, there are more than 200 characters transmitted from parents to progeny. There are more than 200 characters. Got the point? So now let's understand. So here, heredity is associated with production of similar kind of progeny. Production of similar kind of progeny. And for that, we use a word that is the like, Beckett's like. Okay, and in human being, there are more than 200 characters, transmitted from parents to the progeny. Got the point? And in human beings, now what are those characters? I will come to that. Don't worry. In human beings, more than 200 characters transmit from parent to progeny. Okay. Now, ठीक है ये सारे स्टेटमेंट है, बट इसको और फील करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, राइट. जैसे देखिए ये एलिफेंट है, राइट. ये मेल एलिफेंट है. ओके, this is the symbol of male, right? Please understand. There are two symbols we usually use in the genetics. One symbol is this. This is the symbol for the male, and one symbol is this way. This is the symbol for the female. Okay. So ये जो एलिफेंट है वो मेल है, इसकी क्रॉस हुई एक एलिफेंट से, and this elephant is a female elephant, right? And after crossing, right, हमें offspring मिला, right? We got an offspring. But ये जो offspring है वो भी एलिफेंट है. It means male is also elephant, female. Basically, you can say the male parent is elephant, female parent is elephant, and offspring is also elephant. मतलब हाथी parents है तो बच्चे भी हाथी, right? And this is all because of
heredity. It's all because of, what's the reason for that? It's all because of heredity. What the point? Understanding? I so much more that what's the meaning of heredity? अच्छा एक और examples लेते हैं, right? Let's take one more examples. So, ये human है, right? This is male. Again, ये human है, and this is female, right? उसकी breeding हुई, right? And after breeding, we get an offspring, right? And this offspring is also human. This is because of the heredity. Okay? अब heredity तो हम लोग समझ गए कि heredity होता क्या? What it is? It's a study of transmission of genetic character from parents to offspring, right? जेनेटिक कैरेक्टर का यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसी के स्टडी को बोलते हैं हेरिडिटी। और यहाँ पे हेरिडिटी जो होता है प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनी, एंड फॉर दैट वी यूज अ वर्ड दैट इज द लाइक begets like. एंड ह्यूमन बीइंग में खास करके देयर आर 200 कैरेक्टर्स व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कलर ऑफ द आईज हो गए, हेयर शेप्स हो गए, अच्छा कलर ऑफ द आईज ब्राउन होगा या ब्लू होगा, हेयर शेप्स हो गए जैसे कर्ली होगा या स्ट्रेट होगा, आईब्रोज हो गया, हैवी bushy या फिर थिन हो गए, हेयर ऑन द मिडिल जॉइंट ऑफ द फिंगर्स ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ, कलर विजन नॉर्मल है या फिर रेड कलर, ये सारी चीजें आएंगी आगे, है ना। टंग रोलिंग, है ना, we'll see this particular case, टंग रोलिंग, है ना, rolling of the tongue हो रहा है, you know, U shape when extended out from the mouth, or no rolling, ये दो केसेस होते हैं। hand use, whether they are right handed or the left handed, accordingly we'll use। skin का color, albinism या फिर normal, albinism it's, you know, it's a total absence of pigments in the skin, normal light या फिर dark pigment हो गया। ear lobes में हम लोग समझेंगे, ear lobes में free lobe है या फिर attached lobe है, lips thick है या thin है, blood group RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें जो होते हैं ना, you know, these are the characters, you know, which is, you know, being transmitted from parents to the progeny. What the point? You know, तो ये सारी चीजें हैं। So that is all about you know heredity। अच्छा एक चीज और बताइए कि heredity का सिंपल से मतलब cat produce cat, not the dog, a mango seed, you know, germinate into mango tree, a human being gave birth to the human, not to the apes, isn't it? So these all things, and फिर हमने डिस्कस करा like begets like, but yet there is variation human के, अगर पेरेंट्स ह्यूमन है मम्मी पापा, तो बच्चे जो है वो ह्यूमन हो गए। So that is what we call it a like begets like, but yet there is difference, isn't it? So all organisms, whether animals, plants, or the microorganisms, produce their own kind through reproduction, isn't it? और यहाँ पे हम जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हालांकि ए सेक्शन में और भी ज्यादा सिमिलर होता है, वो तो क्लोन हो जाता है ना। We'll discuss about what the difference between the sexual reproduction and asexual reproduction conversations. Okay, but the offsprings are never identical to the parent, इसलिए मैंने sexual reproduction की बात की, and some differences, however small or, you know, it may be, you know, found in them. So again यहाँ पे difference होता है और उसी को बोलते हैं variation. Okay, चलिए variation को समझते हैं। इसी से मैं ले लेता हूँ examples के थ्रू। जैसे देखिए ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, ऑफस्प्रिंग है और वो भी ह्यूमन आया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। अब वेरिएशन को समझते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं ये जो ह्यूमन मेल है, ओके, लेट्स सपोज ये गुड हाइट के, राइट, ओके, इट इज ऑफ गुड हाइट, एंड लेट्स सपोज मॉम इज आल्सो ऑफ गुड हाइट। जो ऑफस्प्रिंग्स आए, राइट, ये भी गुड हाइट के आए, so it's fine, but sometimes what happens, but sometimes
व्हाट हैपेंस, ये जो ह्यूमन है, ये ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे क्या हो गया, ये लेस हाइट के हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन. वेरिएशन मींस चेंज. तो वेरिएशन क्या होता है, इट्स अ डिफरेंस दैट आर सीन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना. सो व्हाट इज वेरिएशन? Variation or difference that are seen, among the members of the same species, isn't it? And it's a raw material for the evolutions, right? Don't worry, अगर कुछ चीजें नहीं समझ आए तो it's fine, क्योंकि ये हायर क्लासेस की चीजें हैं ना. It's raw material for the evolution, मतलब variation is directly proportional to the, मतलब जितना ज्यादा वेरिएशन हो, सिंपल तो है, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा इवोल्यूशन होगा, राइट. अच्छा एक चीज मुझे बताओ आप लोग, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, एनीवन? व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, सोचो क्यों जरूरी है वेरिएशन. सी, variation during reproduction is important because it is necessary for the survival, है ना. Let's suppose मैं एक examples के through लेता हूँ, right? Okay, let me just एक examples के through मैं आपको समझाता हूँ. Sorry, देखिए टेम्परेचर है ना. Let's suppose दो environment है ना, दो environment. मेरा क्वेश्चन था कि why variation is important. क्यों जरूरी है? So variation is important because of survival. कैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. देखिए दो इन्वायरमेंट है ना. ओके, तो सॉरी, मतलब इन्वायरमेंट क्या है, वो चेंज होते जा रहा है, राइट. इन्वायरमेंट क्या है, चेंज होते जा रहा है वक्त के साथ, है ना, बदलते जा रहा है. ओके, चेंज होते जा रहा है. बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स जो इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो दो टाइप के हैं. एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वेरिएंट है, और एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन वेरिएंट हैं. व्हाट द पॉइंट. तो जो ऑर्गेनिज्म वेरिएंट होंगे, मतलब अपने आप में वेरिएशन लाएंगे, जो अपने आप में चेंजेस लाएंगे विद द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट जैसे चेंज होते जा रहा है, अपने आप को भी चेंज करते जा रहे हैं. जैसे इन्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है, अपने आप को भी अडेप्ट करते जा रहे हैं. उसके उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं, तो ये सरवाइव कर पाएंगे. बट जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर रहा विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, वो मारा जाएगा. They cannot able to survive, isn't it? So that's why variation is important. Okay, so हमने दो चीजें समझ ली. सबसे पहले हमने समझी कुछ बेसिक चीजें, दूसरी बात हमने समझी जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है. अच्छा हर क्लास में आप आएंगे तो वेरिएशन बहुत से टाइप के होते हैं. सोमैटिक, फिर कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस का होता है, फिर सब्सटेंटिव मेरिस्टिक, सब्सटेंटिव पेरिस्टिक, ये सब सारी चीजें होती है. बट अभी फॉर द टाइमिंग नहीं कुछ ये सब. ओके, अच्छा सिंपल सा वेरिएशंस का होता किस वजह से, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, है ना. जैसे जो सोमैटिक वेरिएशन होंगे वो एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज, कॉन्शियस इफेक्ट. जो जोनल वेरिएशन होंगे वो क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रैंडम फर्टिलाइजेशन, म्यूटेशन की वजह से होंगे, है ना. गॉट द पॉइंट. अब ये सारे जो टर्म्स मैंने बोले हैं वो डिटेल में हर क्लासेस में यहाँ भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे. ओके, एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो हमने ये दो चीजें समझा. ओके,
अच्छा, जेनेटिक कैरेक्टर्स में बता रहा था कि जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होता है, इसको तो समझ गए होंगे आप लोग। जेनेटिक कैरेक्टर, द फीचर और द कैरेक्टर फॉर्म ड्यू टू जीन दैट इज कॉल्ड, जैसे हाइट, स्किन कलर, हेयर, कर्ली होगा या स्ट्रेट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जीन, इसलिए इसको क्या कहा गया, जेनेटिक कैरेक्टर कहा गया, है ना। व्हाट द पॉइंट, होप यू understood all these things. अच्छा, इसके अलावा after that we'll see some of the terms, right, some of the terms. Okay, so I've already explained to some of the high classes, so मैं वहीं से आप लोगों को समझा देता हूँ। okay, जैसे देखिए, सारी चीजें आप लोगों को नहीं समझनी है। okay, some of the part you have to, I mean basically I'm just going to discuss some of the terms, right, which is very important to understand the genetics, right. okay, so देखिए, क्लोन क्या होता है, क्लोन, क्लोन जो होता है ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल मेंबर्स अराइज फ्रॉम, मैंने बताया था क्लोन रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल और एक होते हैं एसेक्सुअल, है ना। एक होते हैं एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो वेरिएशन होता है, बट जो एसेक्सुअल होता है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता, एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह होते हैं ये प्रोजेनी। सो देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल मेंबर्स, एकदम कंप्लीट, एकदम सेम, राइज फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रैमिट क्या होता है, ईच इंडिविजुअल ऑफ द क्लोन, जैसे ये पेरेंट्स हुए और इनसे बच्चे हुए, राइट। तो ये जो ईच इंडिविजुअल हुआ ना, इसको रैमिट कहेंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, ऑफस्प्रिंग कहेंगे इसे। और ये जेनेटिकली डिसिमिलर होता है, ऑफ कोर्स समथिंग वेरिएशन होती है। सिबलिंग्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अराइज फ्रॉम द सेम पेरेंट, ओके। जो सेम पेरेंट से जो बच्चे होते हैं आपस में सिबलिंग्स तो कहलाते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज आप लोग देखिए, कैरेक्टर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, ट्रेट क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है ना। फिर जीन क्या होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई फीचर उसे कहेंगे कैरेक्टर। और ये किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से होता है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ह्यूमन में हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, आई का कलर हो गया, हेयर स्ट्रेट है या कर्ली है, ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्लांट में भी देख लीजिए, उसमें हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, पॉट, पॉट का कलर कैसा हो गया, पॉट मतलब फली, शीट का कलर क्या हो गया, शेप क्या हो गया, तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। अब ट्रेट क्या होता है, ट्रेट कहते हैं वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। क्या बोला है, वेरिएबल फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हाइट, हाइट एक क्या है, एक कैरेक्टर है। तो इसके दो फॉर्म तो हो सकते हैं ना, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये जो टॉल एंड ड्वार्फ हुए ना, इसको ट्रेड कहेंगे, और ये जो हाइट हुए ना, इसको कैरेक्टर कहेंगे। तो इसी हाइट का तो दो फॉर्म आया, ओके। सो व्हाट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर इज एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, see the way of communications I'm keeping here for the timing is except Hindi and English, so hope everyone understand little bit of Hindi, am I right? होप सो। बाकी तो हमारे लाइव क्लासेस होंगे ही, ओके। सो इफ एनीवन फाइंड एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी देयर, ओके, इफ देयर वुड बी एनी लैंग्वेज इश्यूज। सो ये हुआ कैरेक्टर, ये हुआ ट्रेड। फिर से कैरेक्टर क्या हुआ, किसी भी फीचर ऑर्गेनिजम्स का, ये सारा। ट्रेड क्या हुआ, कैरेक्टर का वेरिएबल फॉर्म, जैसे हाइट, टॉल हो गया, डॉर्फ हो गया, इसको कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया प्लांट पे, फ्लावर का कलर कैरेक्टर है, इसके दो फॉर्म, एक वायलेट एंड व्हाइट, ये क्या हो गया, ये ट्रेड हो गया, ओके। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब समझते हैं जीन, है ना, कि जीन क्या है। जीन भी आपके सिलेबस में दिया हुआ, मेंशन करा हुआ, राइट, ओके। जीन होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो टर्म था वो जो एंसन ने दिया था, राइट। और मेंडल ने जीन का यूज नहीं किया था, उन्होंने उन्होंने एलिमेंट या फैक्टर कहा था। प्लीज, ये हाई क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा, बट अभी से आप ध्यान रखो। मेंडल जो है, इन्होंने कभी भी जीन टर्म यूज नहीं किया था। इन्होंने इस जीन को इन्होंने एलिमेंट कहा था या फैक्टर कहा था, ओके। अच्छा, जीन होता क्या है,
तो इसको हम तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। पहला कि सेगमेंट ऑफ द डीएनए क्रोमोसोम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। भाई आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स क्या न्यूक्लियस होते हैं, वहां क्रोमोसोम्स होती है, वहां डीएनए होती है, और जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको बोलते हैं जीन। जैसे ये देखिए क्रोमोसोम, यहाँ डीएनए, ओके, और यहाँ पे एक ये देखिए सेगमेंट है, and this particular segment is called the gene, and this is responsible for the appearance of the character। जैसे ये देखिए जीन, लेट्स सपोज ये जो जीन है ना वो हाइट क्या है, तो इट्स जीन ऑफ हाइट। ये डीएनए था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन की वजह से ये क्या बनाया, कैरेक्टर बनाया, राइट। ये हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर किसकी वजह से, इस जीन की वजह से, इसलिए तो हाइट को कहा गया जेनेटिक कैरेक्टर। गॉट द पॉइंट। एक और ले लीजिए, यहाँ पे एक और जीन है, ये जीन ऑफ कलर है, ओके। फिर ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से यहाँ पे कलर हुआ, और ये कैरेक्टर हुआ, और ये कैरेक्टर जो जीन की वजह से, इसलिए जेनेटिक कैरेक्टर हो गया, ओके। तो इस तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका बता सकते हैं, सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट जनरली सिंथेसाइज आरएनए प्रोटीन। आरएनए ही और प्रोटीन ही तो बना रहा है, isn't it? तो इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। So genes are the specific part of the DNA of a chromosome which determines the heredity characteristics। आप लोग लेवल पे कह सकते हो ये स्टेटमेंट। वैसे बेसिक क्या है, सेगमेंट ऑफ द डीएनए क्रोमोसोम रिस्पांसिबल फॉर कैरेक्टर, उसी को जीन। भाई ये सब जीन नहीं हुआ, बट ये एक पार्ट है जो जीन है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कैरेक्टर बना रहा है, या आरएनए या प्रोटीन बना रहा है, उसे कहेंगे जीन, ओके। अच्छा, जीन जो होता है इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस का यूनिट है। कैसे? आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि पेरेंट्स में एक जीन था, हाइट का जीन था, है ना। आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, और ये हाइट जो है अपीयर हुआ पेरेंट में। बट अगर आप चाहते हो कि हाइट बच्चे में भी आए, तो दिस जीन मस्ट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस पेरेंट टू प्रोजेनी। तो ये देखिए इसको ट्रांसफर हुआ। अच्छा, तो अगर जीन प्रेजेंट है तो आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फिर हाइट आएगी। सो दैट्स व्हाई I call it as a unit of inheritance। Gene must be inherited to the next generation for the character। और यहाँ पे हम जो एग्जांपल लिए हैं किस कैरेक्टर का, हाइट का, ओके एवरीवन। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, केमिकली जो जीन्स होते हैं वो डीएनए होते हैं, राइट, ओके। एंड ऑल जीन्स आर डीएनए। ये हर क्लासेस की चीजें, बट चलिए मैंने रीड कर दिया तो इसको देखिए। ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन्स। अभी तो मैंने कहा कि ये जो सारे पार्ट है वो सब डीएनए है, बट सारे वो जीन नहीं कहेंगे, एक स्पेसिफिक पार्ट ही रहेगा, ये इसको कहेंगे जीन, इसको कहेंगे जीन। ये जो पार्ट है वो जीन नहीं है, बट ये पार्ट जीन है, ये पार्ट जीन है, तो इसको कहेंगे डीएनए, इसको कहेंगे जीन। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में पूछा जाता है नीट में, है ना, ओके। So hope you understood what's the meaning of gene and all these things, right? Okay. अब देखिए एलील्स को समझिए क्या होता है। What is alleles? एलील्स या फिर एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, है ना। ये होता क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, उसको बोलते हैं एलील। मतलब जीन का अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहते हैं, है ना। अच्छा, एलील्स जो होता है एराइज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, रिवोल्यूशन होता है, डीएनए में चेंजेस होता है और म्यूटेशन होती है। अच्छा, एलील्स को आप कैसे बताएं? एलील्स जो होता है दे आर प्रेजेंटेड सेम लोकस, लोकस का मतलब पोजीशन, मतलब
सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर। डोंट वरी, मैं भी डायग्राम से आपको बताऊंगा। ओके, सो एलील्स जो होते हैं वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रेगुलेट सेम कैरेक्टर। मतलब अगर एलील्स आपको बताना हो तो आप तीन फीचर जरूर बताओगे। पहला सेम लोकस, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, तीसरा सेम कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। ओके, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। And one more thing, allelic genes are always present in homologous chromosome, but all the genes present in homologous are not allelic. और जो सिमिलर काइंड के एलील्स होंगे उसको बोलेंगे होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, जैसे हाइट के लिए हुआ कैपिटल टी कैपिटल टू, और हाइट के लिए है स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, और ये हुआ डिसिमिलर काइंड ऑफ एलीलिक, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। आइए इसको समझते हैं। ये देखिए, एक ये क्रोमोसोम्स है और एक ये क्रोमोसोम्स है, राइट। ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो होमोलोगस है। क्यों? क्योंकि दे आर सेम इन शेप, साइज एंड location of the same. They are same in structure, shape, size and location of the gene. Location of the gene का मतलब होता है कि सेंट्रोमेयर से सेम डिस्टेंस पर है ये पर्टिकुलर जीन। ओके, सेम डिस्टेंस पर है ये जीन्स का लोकेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एक डोमिनेंट एलील है जो पहले से प्रेजेंट है। ओके, और ये आरएनए में प्रोटीन में, और ये टॉल हो गया, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो जीन है वो जीन ऑफ हाइट है, राइट। ओके, अब इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, राइट, इस पर्टिकुलर जीन में। तो ये देखिए यहाँ पे म्यूटेशन हुआ। ओके, तो ये जो हुआ ये रेसेसिव एलील बन गया। तो रेसेसिव बन गया तो ये ना आरएनए बना पा रहा है ना प्रोटीन बना पा रहा है, तो टॉल अपीयर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, तो ये डॉर्फ बन गया, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए तो डॉर्फ बना और ये टॉल हुआ। और इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैपिटल टी से, जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेसेसिव होते हैं उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही दोनों एलील हो गया। क्यों? तीन चीजें। पहला, सेंट्रोमेयर से सेम डिस्टेंस पर है, पहली बात, इट मींस सेम लोकस। दूसरी बात, होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। तीसरी बात, सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। देखिए तो ये भी जीन तो हाइट को ही रेगुलेट कर रहा है, ये भी जीन तो हाइट को ही रेगुलेट कर रहा है, isn't it? What the point? तो ये सारी चीजें, so that is about the alleles. Okay, that is all about the alleles. Okay, ये सारी चीजें भी आप लोग को समझना। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं आप लोग को डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील बताता हूँ, राइट। What is dominant allele and what is recessive allele? Okay, so dominant allele क्या होता है? Allele that can express both in homozygous and heterozygous condition में। वह होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे कैपिटल टी, उसे कहेंगे डोमिनेंट एलील। ओके, रिसेसिव एलील क्या होगा? एलील दैट कैन एक्सप्रेस ओनली इन द होमोजाइगस, वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसे कहेंगे रिसेसिव एलील। जैसे यहाँ देखिए, ये कैपिटल टी है, टॉल हुआ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, टॉल हुआ, स्मॉल टी ये डॉर्फ हुआ। तो ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, राइट। और यहाँ पे ये टॉल आया डॉर्फ आया, तो ये जो दोनों है इसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी और ये रेसेसिव। ओके, अच्छा देखो, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स में देखने के लिए आप कैसे पता लगाओगे कि कोई पर्टिकुलर
एलील जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है? सिंपल है, आप उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन में देख लो, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर वो अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ओके, गॉट द पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं। अब जो नेक्स्ट बात है सीखेंगे, दैट इज अबाउट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है? ओके, व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप? तो फिनोटाइप जो होता है, इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या मैंने कहा? फिनोटाइप, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक्सटर्नल अपीयरेंस को बोलेंगे, जैसे टॉल या डॉर्फ। भाई आपको बाहर से दिख रहा है, एक्सटर्नली आप देख रहे हो, तो हाँ भाई ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट डॉर्फ है, तो फिनोटाइप हुआ। ओके, और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये विजिबल नहीं होता। जैसे यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू देखिए, ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये इसको बोलेंगे फिनोटाइप। और ये टॉल जो है किसके वजह से है? तो ये जीनोटाइप की वजह से, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जीनोटाइप है, विजिबल नहीं है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है। और ये स्मॉल टी भी जीनोटाइप है, जिसकी वजह से ये डॉर्फ हुआ। तो टॉल एंड डॉर्फ जो है वो फिनोटाइप हुआ। ओके, सो दैट इज अबाउट द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। फिनोकॉपी भी आप लोग की जरूरत नहीं है, सो दैट्स द थिंग। ओके, अच्छा जीनोम यहाँ देख लीजिए क्या होता है। जीनोम इज इट्स ऑल अबाउट सम टोटल ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर टोटल जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसे बोलते हैं। ओके, और जीन पुल बोलते हैं किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा ये सारी चीजें देखो स्लाइड में भी मेंशन करा हुआ है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, अभी मैंने जो आपको बताया। ये देखो जीन है ना, ये देखिए डीएनए है, ये देखिए डीएनए है, बट ये डीएनए हो गया। ओके, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट ही जो है उसको जीन कहेंगे, स्पेसिफिक सेगमेंट ही जो है वो जीन कहलाएगा, स्पेसिफिक सेगमेंट ही जो है उसे जीन कहलाएगा। ये देखिए एलील्स है ना। ओके, तो ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है ना, हेमिजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप वगैरह है, ये सारी डोमिनेंट एंड रिसेसिव है, जीनोम वगैरह है, राइट। ओके, अच्छा अब हम देखेंगे प्री मेंडेलियन नहीं, डायरेक्ट मेंडेलियन कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग के जो सिलेबस में मेंशन करा हुआ है, तो जीनोटाइप देख लिए, फिनोटाइप देख लिए, ये सारी चीजें हमने मेंशन किया। अच्छा एक अब देखते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्या क्या हुए थे, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड का केस देख लेंगे, और जरा सेक्स लिंकिंग इनहेरिटेंस देख लेंगे, राइट। देखिए मेंडलिज्म, राइट। तो चीचे मेंडल है ना, कब बॉन्ड हुए थे ये एंड ऑल, वर्कड ऑन ऑगस्टिन बॉनस्टीन मॉर सिटी ऑस्ट्रिया, एंड इन्होंने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, राइट। हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है हाई क्लासेस में देखेंगे, अभी बेसिक चीजें बस देख लेंगे। ठीक है, किस पे? आइसम सेटिवम पे, है ना। गार्डन पी प्लांट, अच्छा एक स्वीट पी प्लांट भी होता है, उसको लथायरस और ड्रेटस बोलते हैं ना, वो अलग चीज है। ये यहाँ पे गार्डन पी प्लांट है, पाइसम सेटिवम, सो बी केयरफुल, है ना, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, है ना। और किस पे इन्होंने पब्लिश करा था वो है, ही विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क इनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज, है ना। इट्स वेरी सैड टू हियर ऑल दिस थिंग्स। एनीवेज थर्ड डिस्कवरी हुआ था, कार्ल कोरेंस ने किया था, हुगो डे वेरिस ने किया था, टिश्मार्ट वगैरह ने किया था। ओके, and now here I have explained what are the reasons for unrecognition, right? Unrecognition का क्या क्या reasons रहा था, right? तो ये सारी चीजें हैं। पहला तो ये कि पुअर कम्युनिकेशन होने के वजह से ये कंटेम्प्रेरी, मतलब उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे वो एग्री नहीं हो रहे थे। मैथमेटिक्स का बहुत सारा इन्होंने, भाई बायो वाले है ना, एक तो बायो वाले मैथ्स यूज करोगे तो वैसे ही वो रिपेल करने लगेंगे, राइट। तो इन्होंने बहुत सारे मैथ्स का यूज करा था।
दूसरी बात, इन्होंने फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था, लोकल मैगजीन्स में पब्लिश करवाया था, है ना। और उस वक्त बहुत फेमस साइंटिस्ट थे डार्विन, है ना। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से सारे के सारे साइंटिस्ट का ध्यान उधर चला गया था, लैक ऑफ एग्रेशन था, और कई सारे कुछ डेविएशंस भी हुए थे इनके रिजल्ट्स में, इस वजह से ये सारी चीजें। मेंडल के सक्सेस होने का रीजंस क्या था, ऑल दिस थिंग्स है। ओके। और दूसरी बात है कि इन्होंने पाइसम सैटिवम को क्यों सेलेक्ट किया, तो देख लीजिए, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था भाई। अगर आप ह्यूमन पे करोगे, ह्यूमन जेनेटिक्स क्यों नहीं ज्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि 100 साल जी जाते हैं, है ना। दे आर सर्वाइविंग, 100 साल सेंचुरी मार देते हैं वो लोग, है ना। सो इट्स नॉट पॉसिबल ना, इज इट। आप कुछ कैरेक्टर्स को आपको स्टडी करना होगा, तो एक जनरेशन आप 100 साल वेट करोगे, तो आप कब आप खुद ही कब ऐसे एज ए रिसर्चर वर्क कर पाओगे, राइट। सो लाइफ स्पैन जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। ओके, स्मॉलर साइज। प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस किया जा सकता था, राइट। ओके, ये सारी चीजें, और ग्रो इजिली ग्रो किया जाता था। लार्ज एंड प्रोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, मतलब आप आसानी से देख लेते कौन मेल है कौन फीमेल है, बहुत सारे कैरेक्टर आराम से यहाँ पे नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो यहाँ पे मेंशन है। ओके, अब देखिए मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को स्टडी करा था। तो पहला स्टेम हाइट, है ना, टॉल डॉट, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल, राइट, पॉट शेप, फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। ओके, पॉट का कलर ग्रीन एंड येलो, शीट का शेप राउंड एंड ट्विंकल, शीट का कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर का कलर वायलेट एंड व्हाइट, राइट। यहाँ पे ये मेंशन करा हुआ है। अभी क्रोमोसोम नंबर अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट ट्रेड है, ये रेसेसिव ट्रेड है। ओके, ट्रेड करेक्ट, ध्यान में है कि भूल गए आप लोग। कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी फीचर। ट्रेड क्या होता है, वेरिएबल फॉर्म। जैसे यहाँ पे हाइट है, तो हाइट टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। okay? तो रिवीजन, है ना, रिवीजन। अच्छा, एक चीज और देखो, बायोलॉजी आप पढ़ो ना, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राइट। भूलने से पहले ही रिवाइज करो आप। मैं हमेशा बोलता हूँ बायोलॉजी इट्स ऑल अबाउट रैपिड एंड फ्रिक्वेंट रिवीजन, है ना। लोग कहते हैं सर भूल जाते हैं, भाई सभी भूलते हैं, मैं भी 10 साल नहीं पढ़ाऊंगा तो भूल जाऊंगा, सब लोग, है ना। इट्स नॉट, दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग विथ यू ओनली, इट्स हैपनिंग विथ इट्स नॉर्मल। सो उसका सोल्यूशन क्या है, रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिवीजन कीजिए, है ना। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, ठीक है। ओके, ये तो खैर किस किस क्रोमोसोम पर मेंशन है ये भी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, और यही था हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट कि सबसे पहले मैस्कुलेशन हुआ, बैगिंग हुआ, टैगिंग हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स, फिर डस्टिंग, कलेक्टिंग, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था, है ना, इसको भी देख लेंगे। ओके, अब देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब होता है वन, यहाँ पे a cross done to study inheritance of one character, या फिर आप तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड भी बोल सकते हैं। जैसे हाइट ऑफ द पी प्लांट एक करेक्टर है, टॉल डॉर्फ क्या हुआ, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है। तो जब एक करेक्टर के स्टडी किया गया उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। जैसे पेरेंट यहाँ पे प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ लिया गया, है ना। ओके, अच्छा, प्योर टॉल, ये सब हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट में है ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे प्योर टॉल लिया गया, प्योर डॉर्फ लिया गया। प्योर टॉल को आप कैपिटल टी से लिखते हैं, प्योर डॉर्फ को स्मॉल टी से लिखते हैं। और यहाँ पे जो गैमेट बने वो ये। अच्छा, गैमेट बनाने का ना तरीका होता है, ओके, उसको भी हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हर क्लासेस में वहां से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बट मैं आप लोग को इसी क्लासेस में समझा दूंगा किस तरीके से गैमेट्स बनाने हैं, क्या प्रोसेस है, राइट। ओके, तो ये गैमेट्स बने, राइट। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके। फिर यहाँ पे F1 जनरेशन आया जो कि सारे के सारे टॉल हुए। फिर F1 का सेल्फिंग हुआ, ओके। सेल्फिंग मतलब आपस में सेल्फ। और यहाँ से इसके गैमेट बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और यहाँ से इसके गैमेट बने, राइट। और ये प्रोजेनी बना, इसको पैनेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल टी ये टॉल हुआ, कैपिटल स्मॉल टी ये भी टॉल हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हुआ, स्मॉल टी डॉर्फ हुआ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो फिनोटाइप हुआ वो 3:1 का रेशियो में आया। क्यों, क्योंकि टॉल कितने आए, 1 2 3, ओके। डॉर्फ कितने आए, 1 आए।
अच्छा जीनोटाइप 1:2:1, क्यों? क्योंकि एक ये हुआ, 2 ये हुआ और 1 ये हुआ। ओके। अच्छा टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n यहाँ पे हेटेरोजाइगोट है, राइट? जैसे यहाँ पे देख लीजिए कितने हेटेरोजाइगोट है, एक ही तो है, राइट? ये तो इसीलिए यहाँ पे 2 है। अरे भाई 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 होता है, ठीक है? ओके, फॉर द पॉइंट। और यहाँ पे टाइप ऑफ जीनोटाइप, राइट? 3 का पावर n होता है, राइट? ओके ओके, 3 का पावर n, राइट? तो यहाँ पे n का वैल्यू है 1/3, है ना? जीनोटाइप कितना है? 3 ही तो है, 3 ही तो है जीनोटाइप। अच्छा नंबर ऑफ जाइगोट निकालने का फॉर्मूला 4 टू द पावर n होता है, राइट? ये चीजें आप अभी सही कर लीजिए, थोड़े डेप्थ में बता देता हूँ, ठीक? 4 टू द पावर, जो मेडिकल में हो या नीट लेंगे उसको थोड़ी सी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पता होगी। तो जाइगोट निकालने का फॉर्मूला ये होता है 4 टू द, जाइगोट मतलब ऑफस्प्रिंग। ये देखिए तो 4 टू द पावर यहाँ पे 1 करोगे तो 4 ही तो है, तो 4 ही तो ऑफस्प्रिंग, ये एक ये एक ये एक ये 4। और यहाँ पे प्योर टॉल कितने आए? एक ही तो आए, 1/4, आउट ऑफ 4 1 आए। इम्प्योर 2/4। प्योर, प्योर प्लांट मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो एक ये आए और एक ये आए। ओके, ये सारी चीजें परेंट स्क्वायर वगैरह यहाँ पे हो, ये सारी चीजें। ओके, मेल का गैमेट्स यहाँ लिखा जाता है हॉरिजॉन्टली और फीमेल का जो गैमेट है वर्टिकली जनरली लिखा जाता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द मोनो हाइब्रिड, दैट्स राइट। अच्छा यहाँ पे एक लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो इन्होंने मेंडल्स जो यू नो इन्होंने परफॉर्म करा था जो भी मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड एंड they gave Mendel's law of inheritance. The first law is the law of dominance. So क्या था? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर। ऑब्वियसली कैरेक्टर जो है फैक्टर या एलिमेंट इन्होंने कहा था, ठीक है? बट अभी हम लोग जीन कहते हैं और आपको पता ही है कैरेक्टर जो है जीन ही तो रेगुलेट करते हैं, इजंट इट? दूसरा हुआ फैक्टर जो होता है पेयर में प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। अब आप टॉल लिखोगे, राइट? तो टॉल क्या है? एक फिनोटाइप है। आप इसका जीनोटाइप लिखोगे मतलब जीन लिखोगे तो या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे। आप आप कभी ऐसे लिखते हो? सिंगल नहीं ना, तो हमेशा पेयर में होता है, ठीक है? अच्छा पेयर में जब होता है तो हर एक पेरेंट से आता है, जैसे ये है तो ये मेल से आए, ये फीमेल से आए। ओके, दूसरी बात इन केस ऑफ डिसिमिलर, हाँ अगर डिसिमिलर होगा तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट यूनिट ट्रेट और जो नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे रिसेसिव, राइट? ओके, तो ये था अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस और इन तीनों को मिला के लॉ पोस्टुलेट ऑफ द पेयर फैक्टर बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, राइट? Okay, so the law of dominance used to explain the expression of one of the parental character in monohybrid cross. Okay, proportion and all this exception is kind incomplete and codominance, right? Okay, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ये क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्या होता है? This law is based on the fact that alleles do not show any blending. Blending का मतलब होता है mixing. And both the characters are recovered as such in F2 genes through is not seen in their genes. नहीं समझे? देखिए यहाँ पे ये देखिए ये पेरेंट का जनरेशन है, ये F1 का जनरेशन है और ये F2 का जनरेशन है। तो इसमें सिंपल ये कह रहा है कि पेरेंट में टॉल भी था, ड्वार्फ भी था, बट F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल आया तो ड्वार्फ कहाँ चला गया? वो वापस से आया ना F2 जनरेशन में। तो वही कह रहा है कि F1 जनरेशन में तो नहीं दिखा ड्वार्फ, बट F2 जनरेशन में वापस से ड्वार्फ आ गए। ओके, ये सारी चीजें हम मेंशन कर लेंगे। ओके, एंड तो द पेरेंट कंटेन्स टू एलील्स ऑब्वियसली और दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं एक। ओके, ये सारी चीजें और यहाँ देखिए सेग्रीगेट गैमेट के वक्त में अलग अलग हो रहे हैं, ये सारी चीजें। ओके, और यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर कहा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। ये थोड़ा हाई क्लासेस की चीजें हैं, तो देखिए जैसे ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी मदर में है तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, राइट? ओके, अगर नॉर्मल होगा तो क्या होगा? ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाए, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोला गया? क्योंकि ये दोनों जो क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम, दे आर सेम इन
structure, shape, size and location of the change. ओके, बट कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, राइट? ये है, तो देखिए ना, सेग्रीगेट नहीं हुआ दोनों आपस में, तो एक ही सेल में चला गया, तो इसी को बोलता है नॉन डिस्जंक्शन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है? ओके, तो ये चीज है, व्हाट द पॉइंट, तो ये कंसेप्ट था, ये सब अभी जानने की जरूरत है, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह की। ओके, और एक और था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी हुआ, राइट? ओके, दो कैरेक्टर के बारे में, जैसे एक शीट शिप और शीट कलर लिया गया, राइट? यहाँ पे देखिए शीट शिप एंड शीट का कलर, जैसे पैरेंट राउंड येलो रिंकल, ओके ये, ओके, और ये गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, राइट? ओके, डोंट वरी, गैमेट के बारे में मैं बताऊंगा। F1 जनरेशन में ये आया और फिर सेल्फिंग करवाया गया, राइट? ओके, तो यहाँ पे ये देखिए 16 आए F2 जनरेशन, राइट? ओके, तो ये सारा फेनोटाइप है और ये सारे के सारे जीनोटाइप्स है, ठीक है? ओके, और ये सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट? फिनोटाइप, जीनोटाइप, जाइगोट्स निकालने का ये सारा फॉर्मूला, ओके? अब यहाँ पे जो लॉ है दैट इज वी कॉल इट एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? उसके लिए यहाँ पे आपको तीन कंसेप्ट यहाँ पे समझने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेग्रीगेशन इन पेड सेट और क्रॉसिंग ओवर तीनों मेंशन किया। देखिए सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ एलिलिक जीन पेयर, राइट? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एलील्स होता क्या है, जैसे ये दोनों एलील हो गया, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, दूसरी बात डिस्टेंस सेम है, ओके, और तीसरी बात सेम कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। तो जब एलिलिक जीन पेयर का सेग्रीगेशन होगा तो उसको कहेंगे सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, नॉन एलिलिक जीन पेयर ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके, मतलब इसका और इसका सेपरेशन होगा, ये नॉन एलील्स है और ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक इस पे प्रेजेंट है और एक इस पे प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, नॉन एलिलिक ऑफ द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इसका और इसका, ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो एक ये और नॉन एलिलिक है तो एक इसका इसका मान लेते हैं, ओके? ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए, व्हाट द पॉइंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट, हालांकि थोड़ा सा बेसिक चीजें म्यूटेशन दिया हुआ है ना, कि म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन इज सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स या फिर क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ओके? म्यूटेशन यहाँ बता रखा हूँ। ये देखिए, है ना, तो म्यूटेशन जो है, ये सारे टर्म्स इन्होंने दिया था, ये सब चीजें है ना, तो म्यूटेशन होता क्या है, इट्स सिंपली सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, राइट? और ये म्यूटेशन क्रोमोसोमल होता है, जीन म्यूटेशन वगैरह होता है, ये तो खैर टाइप्स हो गया, ओके? बट बेसिकली म्यूटेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि होता क्या है, तो इट इज सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स या फिर नंबर या फिर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा एग्जांपल है म्यूटेशन का आप लोग के लिए पे सिकल सेल अनीमिया है, राइट? ओके, सिकल सेल अनीमिया और रेडियो एक्टिव रेडिएशन के भी वजह से होता है। सिकल सेल अनीमिया में क्या हो जाता है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, जो इसके थ्रू देखिए, यहाँ देखिए सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। देखिए सिकल सेल अनीमिया होता क्या है, यहाँ पे म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में क्या मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिक्स्थ अमीनो एसिड जो होता है बीटा चेन का, वो चेंज हो जाता है ना, ग्लूटामिक से वेलिन में चेंज हो जाता है, मतलब एक तरीके से ये म्यूटेशन होता है, राइट? ओके, यहाँ पे देखिए, जो सिक्स्थ है, सिक्स से यहाँ पे वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट?
तो ये नॉर्मल बनाता है, तो यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी बनाता है। बट जब ये चेंज हो जाता है ना, तो नॉर्मल आरबीसी मतलब बाइकॉनकेव शेप नहीं बनाता, राइट, वो सिकल शेप बनाता है। देखिए ना, सिकल शेप, और ये बाइकॉनकेव शेप, है ना, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का, ओके। और रेडिएशन के भी वजह से हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में म्यूटेशन हो गया था, सो दैट वाज द थिंग, ओके। फिर और भी चीजें कुछ कुछ डिटेल में डिस्कस करना है, 2-3 चीजें। एक हुआ एक्स लिंक इनहेरिटेंस, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम पर आप पता है कि 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है। जो एक्स पे होगा उस एक्स क्रोमोसोम को एक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलेंगे, जो वाई पे लिंक्ड होगा उसको वाई लिंक बोलेंगे, राइट। और एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, मतलब यहाँ पे ना अपोजिट सेक्स में ट्रांसफर होता है, राइट, ओके, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, राइट। तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। आपके लेवल पे ये टर्म यूज करा हुआ, उसको डिटेल में देख लेंगे, राइट, कैसे क्या होता है ये सारी चीजों पे। सो फॉर टुडे विल कीप इट अप टिल हियर, ओके। एक क्विक रिकैप था, पूरे चैप्टर्स का लगभग, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। होप समझ आई होगी आप लोग, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट।